Good morning, student. Today I will start chapter 6 application of derivative. Uh, First topic is rate of change of quantities. If a variable quantities y is some function of another variable x defined as y is equal to fx, then a small change delta x in value of x will have a corresponding change delta y in value of y. कह रहा है कि एक्स वाई दो क्वांटिटी है, वाई एक्स का फंक्शन है. इफ़ एक्स की वैल्यू में हम स्मॉल चेंज करें डेल्टा एक्स, तो वाई की वैल्यू में भी डेल्टा वाई की चेंज होगा. thus the average rate of change is delta y upon delta x when delta x tends to 0. The average rate of change becomes instantaneous rate of change of y with respect to x, denoted by as dy by dx, that is dy by dx is equal to limit delta x tends to 0, delta y upon delta x is equal to instantaneous rate of change of y with respect to x. If x and y are two quantities and depend each other, if change in value of x of delta y, then also change in value of y delta y. If delta y x tends to 0, delta y by delta x is equal to dy by dx. Rate of change of y with respect to x, the value of dy by dx at x is equal to 0 represent the instantaneous rate of change y with respect to x at x is equal to a. Further, if two variable x and y are varying with respect to another variable t, that is x is equal to ft and y is equal to gt, then by chain rule dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt, where dx upon dt is not equal to 0. Rate of change dy by dx. Examples: find the rate of change of the area of circle with respect to its radius when r is equal to 5 centimeter. कह रहा है कि सर्किल के एरिया समय के साथ कैसे बदलता है, ये बताना है. अगर रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, अगर हम रेडियस चेंज करेंगे तो उसका एरिया चेंज होगा. रेडियस इंक्रीज करेंगे एरिया इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा. किस रेट से होगा ये बताना है. सॉल्यूशन: द एरिया ऑफ सर्किल इज a is equal to pi r square. You know that. Differentiate with respect to r, dA upon dr is equal to r square का 2r हो जाएगा, 2 pi r. So dA upon dr at r is equal to 5. r की जगह 5 रखेंगे तो 2 पाई इंटू 5 इज इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ. इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा. एग्जाम्पल 2: द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। करा कि अगर उसका एक क्यूब है, ऑल साइड आर इक्वल क्यूब, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसका सरफेस एरिया पर सेकेंड कितना इंक्रीज होगा ये बताया है। रेट ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी। सोल्यूशन, लेट x be the length of a side and v be the volume and s be the surface area of the cube. We know that volume of cube v is equal to x cube and surface area s is equal to 6x square, where x is side of cube, where x is a function of time t. Now given rate of change of volume with respect to t, differentiate with respect to t of v function, dv upon dt is equal to given 9 cubic centimeter per second. So v की वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9. सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. माने उसका साइड जो है पर सेकेंड कितना बढ़ रहा है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर से. रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. नाउ डी एस अपॉन डी टी, एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी 6x स्क्वायर. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, तो 6 2 12x, और x का करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड डी एक्स अपॉन डी टी. तो सॉरी, x से x कैंसिल हो जाएगा. डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. पुटिंग 12 3 36 अपॉन x. हैंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हैंस देयरफॉर डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 36 अपॉन 10 is equal to 3.6 centimeter square per second. Example third. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at a speed of 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter. करा कि एक शांत झील में पत्थर फेंका जाता है. जब पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से वेव उत्पन्न होती है. वेव प्रोड्यूस होगी तो वो वेव सर्किल के फॉर्म में आगे बढ़ेगी किनारे की तरफ. तो उसका रेट है 4 सेमी पर सेकेंड. तो उस सर्कुलर वेव का रेडियस है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10 सेंटीमीटर. हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. तो वो जो सर्किल जो बनेगा चारों तरफ से, उसका एरिया इंक्रीजिंग किस रेट से होगा, इंक्रीज होगा, ये बताना है. द एरिया ए ऑफ अ सर्किल with radius r is given by a is equal to pi r square. We know that. The rate of change of area with respect to time t, differentiate with respect to t. We have dA upon dt is equal to 2 pi r. r का करेंगे dr upon dt.
सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2πr, डी आर अपॉन डी टी दिया है 4 क्वेश्चन में 4, तो 4 2 जा 8πr, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8πr, और रेडियस ऑफ सर्किल दिया है 10, इसी में रख दीजिए डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 8π मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कवर करेगा, जो सर्किल बनेगा वेव का वो। एग्जाम्पल 4, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter and b point the area of rectangle. कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के रेट दिया है 3 सेंटीमीटर पर मिनट और ब्रेथ का इंक्रीज दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लेंथ डिक्रीज हो रही है रेक्टेंगल का और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, तो एरिया और पेरीमीटर बताना हो कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। अगर पेरीमीटर हम निकालें वैल्यू नेगेटिव में आता है तो डिक्रीज होगा और वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज होगा। देखिए सॉल्यूशन, लेट एक्स एंड वाई बी लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस साइन इसलिए लिया कि डिक्रीज हो रहा है, एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ पेरीमीटर डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 2 गिव यू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर लेंथ ब्रेथ में चेंज करेंगे तो उसका पेरीमीटर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी वाई बाई डी टी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी वाई बाई डी टी, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई बाई डी टी, वी गेट 10 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -3 give you 20 minus 18 is equal to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो उसका एरिया इंक्रीज होगा 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट से, लेकिन पेरीमीटर डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल 5, द टोटल कास्ट CX in rupees associated with the production of X unit of an item is given by CX is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000।
Find the marginal cost when 3 units are produced, where by marginal cost we means the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. Solution: Cx is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000 given. Differentiate with respect to x the change of cost with respect to x. dc upon dx is equal to 0.015 x square minus 0.04 x प्लस 30x का 1 हो जाएगा प्लस 5000 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किए 0.005 में तो आया 0.015, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 में 2 का तो 0.04। सो वी गेट dc upon dx at x is equal to 3. Put the value of x is equal to 3. तो 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 30 वी गेट 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30 इज इक्वल टू 30.015. Hence, the required marginal cost is rupees 30.02 approximate. Nearly. We can start exercise 6.1. Question 1 is homework. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 centimeter and b r is equal to 4 centimeter. dA upon dr निकालना है, ठीक है। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई आर डी, फिर r की वैल्यू 3 रख देंगे 4 रख देंगे। Question 2 is also homework. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. dV upon dt दिया है 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? ds upon dt की बात कर रहा है। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, इसका एज दिया है x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज आल्सो होमवर्क। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when r is equal to 10 centimeter. Solution: let the radius of circle be r centimeter, given dr upon dt is equal to 3 centimeter per second. We know that area of circle is a is equal to pi r square. Rate of change of area with respect to t, dA upon dt is equal to 2 pi r dr by dt. Differentiate with respect to t. Here r is equal to 10 centimeter and dr by dt is equal to 3 centimeter per second. We get
dA upon dt is equal to 2 pi मल्टीप्लाई बाई 10 आर की वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिव यू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? ओके करा एज अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा। उसका अगर एज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉल्यूशन, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब एंड भी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट एनी टाइम टी गिवन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड and x is equal to 10 centimeter. We know that volume of cube v is equal to side का cube x cube differentiate with respect to t, we get dv upon dt is equal to 3x square फिर x का dx upon dt. Put the value of x is equal to 10 and dx upon dt is equal to 3. We have 3 multiplied by 10 का square multiplied by 3 give you 900 cubic semi per second. Question 5. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 semi per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? वही बात है, एक शांत झील में पत्थर फेंका जा रहा है, वेव प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। वो किस रेट से किनारे बढ़ रहे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया कैसे किस रेट से बढ़ेगा वो बात कर रहा है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव दिया है 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, लेट एक्स बी द रेडियस and A be the area of the given circle at any time t given dx upon dt is equal to 5 centimeter per second and x is equal to 8 centimeter. Area of circle we know that A is equal to pi x square, differentiate with respect to x, d differentiate with respect to t, sorry, dA upon dt is equal to 2 pi x into dx upon dt. So put the value of x and dx upon dt, we get 2 pi multiply by 8 multiply by 5 give you 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया कवर होगा। क्वेश्चन 6, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? Solution,
given dr upon dt is equal to 0.7 centimeter per second, where r is radius of circle and t is time. Circumference of circle, we know that c is equal to 2 pi r. Differentiate with respect to t, dc upon dt is equal to 2 pi into dr by dt is equal to, put the value of dr by dt is equal to 0.7, we get 2 pi multiplied by 0.7 is equal to 1.4 pi centimeter per second. Okay, have a nice day.